Hello and welcome to Edumiles Academy. In today's newspaper analysis, we are going to discuss some important newspaper articles from 6 September 2022. For more study materials, you can also join our WhatsApp group. The link has been provided in the description below. So these are the list of the topics that we are going to cover in today's analysis. Let's start. So the first article is about POCSO Act. POCSO Act का meaning है the protection of children from sexual offences. So this article has been taken from an editorial which was recently published in the newspaper Hindu. So this may be useful for our upcoming examination, especially from the mains perspective, JS paper 2. So this has been in the news because of a recent verdict which has been given by the Karnataka High Court. So there's a case known as the Rama Bande Rama versus State of Karnataka. So in this case, the Karnataka High Court has quashed the criminal proceedings under the POCSO Act against a 20-year-old partner. So इसी के बारे में हम जानेंगे, इस केस के बारे में जानेंगे and also certain details about the POCSO Act. So जिन्होंने ये first time सुना है POCSO Act, this act is mainly targeted to protect the children from any kind of sexual assault, sexual harassment and pornography. So mostly you can say to prevent the children from any form of sexual exploitation. ठीक है, अब ये एक्ट कब आया था? This act had been enforced in the year 2012. So now let's learn a little about the POCSO Act and then we'll proceed towards the news. That was the recent news. अब देखिए ये जो POCSO Act है, POCSO Act में यहाँ पे चिल्ड्रन को डिस्क्राइब किया गया है, चिल्ड्रन को यहाँ पे डिफाइन किया गया है. तो लाइक एनी इंडिविजुअल्स हु आर एजेड बिलो द एज ऑफ 18, तो 18 के नीचे जो भी सारे पर्सनस हैं उनको यहाँ पे चिल्ड्रन जैसे ट्रीट किया जाएगा अंडर दिस एक्ट. ठीक है, अब ये जो एक्ट है इट इज़ नॉट जस्ट मैन फॉर अ गर्ल और अ बॉय, इट इज़ जेंडर न्यूट्रल इन नेचर. कहने का मतलब यही है कि दिस एक्ट इज़ इक्वल फॉर अ मेल और फीमेल और इफ इन केस ऑफ अ ट्रांसजेंडर तो इनके लिए भी ये दिस विल बी इक्वल. ठीक है, सो जेंडर न्यूट्रल का मीनिंग यही होता है कि एवरी पर्सन फ्रॉम एवरी जेंडर वुड बी ट्रीटेड इक्वली अंडर दिस एक्ट. सो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेक्शुअल एब्यूज इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू सेक्शुअल हैरेसमेंट हो सकता है, पोर्नोग्राफी हो सकता है. नाउ दिस थिंग्स आर इंक्लूडेड अंडर दिस एक्ट. मतलब यहाँ पे देखिए दिस सेक्शुअल हैरेसमेंट या पोर्नोग्राफी, नॉट जस्ट दिस, इसके बाहर भी कुछ हो सकता है इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. ठीक है, अब सेक्सुअल असॉल्ट जो है इज डीम्ड टू बी एग्रावेटेड. एग्रावेटेड मतलब इट विल बी इवन वर्स अंडर, मतलब ये जो एक्ट है अंडर दिस एक्ट द सेक्सुअल इवेंट जो एक्सप्लॉयटेशन है उसे और भी वर्स माना जाएगा इन केस इफ द चाइल्ड इज मेंटली इल. ठीक है, इफ द crime has been committed with a mentally ill child, then in that case इसे और भी worse माना जाएगा. और तभी भी worse माना जाएगा अगर मान लीजिए if the person who is committing that crime is a person who holds a position of trust. For example, मान लीजिए एक doctor, teacher, policeman, family member. So these are certain people, these are certain positions who are often trusted. है कि नहीं? तो अगर इनके द्वारा अगर होता है then it would be treated as aggravated. All right. So according to this act, steps must be taken which makes the investigation process as child friendly as possible. So how can you make the investigation process child friendly? By so ये जो investigations है, the investigations are normally done by the women police officers. All right. And also the police stations are now modified to have rooms which are suitable for children. ठीक है, like where they do not feel phobic or feared, जहाँ पे उनको डर ना लगे. एंड इफ पॉसिबल, अगर यहाँ पे पॉसिबल है तो जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है सो दैट वुड बी डन नॉट इन द पुलिस स्टेशन बट एनी प्लेस ऑफ द जहाँ पे वो चिल्ड्रन या जहाँ पे वो चाइल्ड कंफर्टेबल हो. ठीक है, और एंड देयर वुड आल्सो बी अ POCSO ई बॉक्स यहाँ पे रहेगा फॉर द केस ऑफ ऑनलाइन कंप्लेन के लिए. एंड द पनिशमेंट जो है, पनिशमेंट यहाँ पे इट कैन बी अप टू डेथ सेंटेंस. ठीक है, इट कैन बी अप टू डेथ सेंटेंस. सो दिस इज अबाउट द पनिशमेंट के बारे में. नाउ देयर हैज बीन द रिसेंट अमेंडमेंट व्हिच वाज मेड इन द ईयर 2019. लेट्स लुक एट इट. अब ये जो 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ था यहाँ पे कुछ प्रोविजंस ऐड किए गए हैं. तो पहला यहाँ पे प्रोविजन ये ऐड किया गया है कि इफ समवन knows about the crime, if someone is aware about the crime, if someone is aware of sexual exploitation being taken place in case of a children, in case of a child, in that case it is mandatory to report such case. अगर ऐसा कोई किसी को पता है तो ये केस जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना ही है. इट मेक्स इट द लीगल ड्यूटी ऑफ अ पर्सन. ठीक है, ये लीगल ड्यूटी है. और अगर नहीं करते हैं तो यहाँ पे जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट मतलब जो पर्सन ने
नहीं किया है ये कंप्लेंट वगैरह आप कह सकते हो, तो उस केस में द पनिशमेंट वुड बी फॉर 6 months, ठीक है, और यहाँ पे फाइन भी हो सकता है। तो व्हाई डू यू थिंक दिस अमेंडमेंट हैज़ बीन मेड? बिकॉज ऑफन इट इज सीन, ठीक है, ऑफन इट इज सीन दैट इन ऑर्डर टू मेंटेन द सोशल रेपुटेशन, कभी कभी पेरेंट्स क्या करते हैं, फैमिली मेम्बर्स क्या करते हैं, दे डू नॉट रिपोर्ट द केसेस, ठीक है, उनको जो ये इवेंट होता है या जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, दे नो अबाउट इट, दे आर अवेयर अबाउट इट, बट स्टिल दे डू नॉट रिपोर्ट इट। तो ये क्यों नहीं करते? बिकॉज ऑफ सोशल स्टिग्मा, यू कैन से, लाइक दे फियर सम काइंड ऑफ सोसाइटल क्रिटिसिज्म, और इन ऑर्डर टू मीट द सोशल एक्सपेक्टेशन, तो यहाँ पे क्या होता है, दे डू नॉट रिपोर्ट इट। फॉर एग्जाम्पल, आपने शायद मूवी देखा होगा हाईवे में, तो हाईवे में भी कुछ ऐसा ही दिखाया जाता है। सो इन दैट केस अगर कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा है, देन द पर्सन विल बी इक्वली ट्राइड अंडर लॉ, ठीक है, अंडर दिस लॉ ओनली, उनको भी 6 महीने का यहाँ पे सजा हो सकता है। एंड ऑल्सो प्रिस्क्राइब्स पनिशमेंट टू द पीपल हु ट्रैफिक चिल्ड्रन फॉर सेक्सुअल पर्पसेस। एंड ऑल्सो यहाँ पे अगर कोई फॉल्स केस यहाँ पे कंप्लेन करता है या कोई अनट्रू इन्फॉर्मेशन देता है, इन दैट केस ऑल्सो यहाँ पे पनिशमेंट होगा। So now let's come to the current context. So now, as I told you, it's about a case in the Karnataka High Court. So the case is about the Rama Bande Rama versus the state of Karnataka. तो यहाँ पे I'll just tell you कि क्या हुआ था केस में। तो मान लीजिए कि this is the 17-year-old girl and this is a 20-year-old मेल पार्टनर, ठीक है। सो दे लाइक आप कह सकते हो कि लाइक बिटवीन दिस 20-year-old मेल एंड 17-year-old फीमेल, लाइक सम काइंड ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी और सेक्सुअल इंटरकोर्स टुक प्लेस, ठीक है। एंड अबाउट दिस सेक्सुअल इंटरकोर्स द फादर ऑफ द गर्ल केम टू नो, ठीक है। एंड एज सुन एज द फादर केम टू नो, लाइक व्हाट ही डिड वाज दैट ही रजिस्टर्ड अ केस अगेंस्ट द 20-year-old मेल पार्टनर अंडर द पोक्सो एक्ट। नाउ हाउ कुड ही रजिस्टर्ड इट? बिकॉज 17-year-old है ना, तो 17, आपके मैंने कहा था कि चिल्ड्रन अगर 18 years के बिलो है तो उनको चिल्ड्रन माना जाएगा, तो शी वॉज ट्रीटेड एज अ चिल्ड्रन। एंड इसी बेसिस पर इनके अगेंस्ट, ये जो मेल पार्टनर है, मेल पार्टनर के अगेंस्ट एक केस यहाँ पे मतलब केस यहाँ पे फाइल किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे जो हुआ था, अब देखिए जो कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या किया है, मतलब जो गर्ल है ना, तो गर्ल का जो स्टेटमेंट है, अब गर्ल का स्टेटमेंट के बेसिस पर अब कर्नाटक हाई कोर्ट ने क्या किया है, इट हैज फाउंड आउट दैट द रिलेशनशिप अमंग द बॉय एंड द गर्ल, इट वाज जो यहाँ पे रिलेशनशिप था ना, इट वाज कंसेंशुअल इन नेचर। कंसेंशुअल मतलब दोनों का कंसेंट था इसमें, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई यहाँ पे किसी ने फोर्स किया था, इट वाज कंसेंशुअल मतलब दोनों का ही कंसेंट था। इस इंटरकोर्स में होगा या ये जो रिलेशनशिप था इसमें दोनों का ही आप कह सकते हो कि कंसेंट था, तो इट इज नोन एज कंसेंशुअल। नाउ बिकॉज इट इज कंसेंशुअल, तो इसीलिए द हाई कोर्ट ने क्या किया, इट हैड क्वेश्ड मतलब यहाँ पे खारिज कर दिया था द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द बॉय। तो यहाँ पे बॉय के अगेंस्ट जो भी यहाँ पे केस था ना, एंड बॉय को यहाँ पे आप कह सकते हो इनको एक्विट कर दिया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो केस था ये बहुत सिंपल सा एक केस है, तो उनको अभी फ्री कर दिया है कोर्ट ने। लेकिन ये जो बात है ना, ये जो केस है उससे एक डिबेट निकल के आया है, ठीक है। ये डिबेट जो ये पहले भी हुआ है, ये चलिए इस डिबेट के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एज आई टोल्ड यू कि जो कंसेंशुअल एज है, इट इज मतलब फॉर सेक्स के लिए क्या है, इट इज 18 years, ठीक है, इट इज 18 years। लेकिन यहाँ पे हम यहाँ पे बात करते हैं कि डिबेट के बारे में, व्हाट हैज एक्चुअली स्पार्क्ड द डिबेट, ठीक है। नाउ सी दिस इज नॉट माई पर्सनल ओपिनियन, पहला बात ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, और मेरा ये जो एक्ट है ना, मैं इसे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट इट इज यहाँ पे कुछ फैक्ट्स है जो इस आर्टिकल में मेंशन है, ठीक है। तो इस फैक्ट्स को हम देखते हैं। अब देखिए ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल आई एम सेइंग द एज जो है ना 18 years, this 18 years for the consensual activity, for the consensual sexual activity is actually on a higher scale for any kind of a person, है कि नहीं। कोई भी लड़का या लड़की के लिए ये माना गया है कि 18 years जो है ना, it is actually on the higher side। कहने का मतलब ये है, अब देखिए इट इज अ काइंड ऑफ रियलिटी, है कि नहीं। आप मतलब इट इज मतलब आप कह सकते हो इज काइंड ऑफ अ रियलिटी ओनली दैट सेक्सुअल एक्टिविटीज जो है इन टुडेज जनरेशन, ठीक है, आजकल के जो जनरेशन है उसमें आप देखोगे कि 18 से काफी पहले ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो इट कैन बी इम्पैक्ट ऑफ द इंटरनेट और द इन्फ्लुएंस फ्रॉम द मूवीज वगैरह, तो जो भी हो यहाँ पे इट्स अ रियलिटी दैट सेक्सुअल एक्टिविटीज अमंग द मेल एंड फीमेल इट स्टार्ट्स क्वाइट बिफोर द एज ऑफ 18, ठीक है। तो अगर आप ये जो रियलिटी है, इफ वी अवॉइड दिस रियलिटी, अगर हम इसे रिकॉग्नाइज नहीं करते तो क्या हो जाता है, देन इट मे बी ऑफन मिसयूज। जैसे इस केस में आप देखिए कि यहाँ पे जो कंसेंसुअल एक सेक्सुअल एक्टिविटी था, बट देन अगेन यहाँ पे जो फादर था, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ दिस पोक्सो एक्ट, बिकॉज ऑफ दिस 18 years का क्लॉज की वजह से इस ये जो मेल है, मेल के अगेंस्ट यहाँ पे केस बन गया था,
ठीक है। तो अगर यहाँ पे जो ये रियलिटी है इफ इट इज नॉट रिकॉग्नाइज देन इट मे ऑफन बी मिसयूज एज इन दिस केस ओनली। तो यहाँ पे जो मेल इन्वॉल्व है ना, तो मेल के अगेंस्ट यहाँ पे मिसयूज होता है। एंड वाई मेल? बिकॉज यू नो इन सच केसेस इट्स ऑफन द मेल, ठीक है, हु इज टारगेटेड। तो इसीलिए यहाँ पे चांसेस है कि मेल के अगेंस्ट ये जो केस है ना ये कभी मिसयूज हो जाए, ठीक है। सो अगर ऐसा होता है, अगर मिसयूज होता है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि इट मे लीड टू 7 to 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द मेल, राइट। नाउ विच विल, अगर मान लीजिए कि लाइक विच विल डेफिनेटली टेक अ टोल ऑन द करियर ऑफ दैट पर्सन, राइट, एंड ऑल्सो हिज सोशल आउटलुक, उसका जो फैमिली है फैमिली को अफेक्ट करेगा, है कि नहीं, जो प्रेस्टीज है, जो डिग्निटी है, उसे अफेक्ट करेगा, राइट। सो इवन इफ द, मतलब ऐसा होता है कि इवन इफ द सेक्सुअल इंटरकोर्स इज कंसेंशुअल इन सर्टेन केसेस, यहाँ पे जो मेल जो रहता है ना पार्टनर, इस मेल पार्टनर का कभी यहाँ पे ही इज ऑफन सब्जेक्टेड टू सच काइंड ऑफ क्राइम, ठीक है। तो इसीलिए दिस इज द रीजन व्हाई दिस 18 years इज, मतलब आप कह सकते हो कि 18 years का जो एज है, इसे एक तरीके से इसे बताया गया है इट इज क्वाइट ऑन अ हायर साइड, ये काफी ज्यादा है फॉर दिस कंसेंशुअल एज। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ब्लैंकेट क्रिमिनलाइजेशन जो है ना, अगर मान लीजिए कि इस तरीके का जब क्राइम जब रिकॉर्ड होता है, तो यहाँ पे जुडिशरी के लिए भी एक तरीके का, मतलब आपको पता ही है कि कितना इंडियन जुडिशरी में कितना सारा केसेस पेंडिंग है, तो इसमें और भी केसेस आ जाता है। जैसे कि ये केस है, ठीक है, यहाँ पे जैसे हाईकोर्ट ने अभी तो फिलहाल इसे क्वाश कर दिया है, लेकिन दिस वाज अ केस, राइट। तो इस तरीके का बहुत ऐसा केसेस आता है। सो दिस विल हेल्प, अगर एज मान लीजिए इसे कम किया जाता है, तो हो सकता है द बर्डन ऑन द जुडिशरी में ऑल्सो रिड्यूस सब्सटेंशियली, ओके। So now the next article is about PM Shri Yojana. So this article has been taken from the Economic Times, and this can be again important for GS paper 2 and also for the prelims as well. Prelims में यहाँ से direct question आ सकता है because it's about a योजना, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है न्यूज़। नाउ आई थिंक यू ऑल नो कि कल का दिन में जो टीचर्स डे था, तो टीचर्स डे सेलिब्रेट हुआ था। तो टीचर्स डे के ओकेजन में सो पीएम मोदी ने क्या किया है, ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे ही हैज अनाउंस्ड द प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। श्री का फुल फॉर्म क्या है, स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया स्कीम यहाँ पे लॉन्च हुआ है। अब इट इज़ अ स्कीम विच इज़ फोकस ऑन एजुकेशन के लिए है। द स्कीम का जो यहाँ पे बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है, नाउ इट हैज बीन लॉन्च फॉर द पर्पस ऑफ अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ द स्कूल्स इन इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सम नंबर हैज बीन गिवन, 14,500 स्कूल्स यहाँ पे अपग्रेड किए जाएंगे। सो लेट्स सी क्या है। अब ये जो पीएम श्री योजना है, दिस पीएम श्री योजना में एज आई टोल्ड यू कि ये टीचर्स डे के दिन में लॉन्च हुआ था, कल के दिन में। सो पीएम मोदी ने इसे लॉन्च किया है और यहाँ पे ये कहा गया है कि डेवलप होगा और यहाँ पे अपग्रेड भी होगा। 14,500 स्कूल्स यहाँ पे अपग्रेड होने वाले हैं अंडर दी पीएम श्री योजना, ठीक है। इस योजना के अंदर 14,500 स्कूल्स विल बी मॉडर्नाइज, यू कैन से, और अपग्रेडेड और डेवलप, ठीक है। अब ये जो स्कूल्स है जो इस स्कीम्स में अपग्रेड होंगे, नाउ दिस आर गोइंग टू हैव a modern, transformational and holistic method of imparting education, okay, which is very important in current times. And also the focus will be laid on modern infrastructure, जहाँ पे latest technology use होगा, then smart classrooms रहेगा, sports and much more, right? And यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे मैंने जो PM मोदी ने यहाँ पे ट्वीट भी किया हुआ है कल के दिन में, तो ये ट्वीट भी मैंने यहाँ पे दे दिया है। और ट्वीट में इन्होंने ये भी ascertain किया है that the PM Shri schools जो है ना, now they will become model schools which will encapsulate the full spirit of NEP. Now what is NEP? NEP का meaning है, NEP stands for the National Education Policy. Now it is nothing but the new education policy जो लाया गया था by the government of India in the year 2020. अब ये तो एक small article है, बस इतना ही है, लेकिन इसी के help से we'll try to learn about the NEP 2020 के बारे में कुछ हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, because questions may be asked from NEP 2020 because this is an important topic, ठीक है। So now about the NEP 2020. So as you can see this in this particular article मैंने यहाँ पे कुछ important points यहाँ पे mention कर दिए हैं. So these are not the only points I'm telling you. यहाँ इसके बाहर भी बहुत सारा points है, ठीक है। NEP 2020 is a very huge document. उसमें आपको बहुत सारा कुछ मिलेगा. एक बार अगर टाइम मिले तो just search in the internet and look for all the points once, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे कुछ important चीज़ों के बारे में बताऊंगा with regards to the NEP 2020. अब देखिए one of the most important things about the NEP 2020 is that यहाँ पे ना, अब इनिशियली क्या था, इनिशियली जो करंट स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो स्कूल लेवल में अभी कैसा रहता है, जो स्ट्रक्चर रहता है, इट वाज 10+2, है कि नहीं। 10 हो गया स्कूल के लिए और 2 हो गया यहाँ पे हाई स्कूल, मतलब मान लीजिए 11-12 के लिए, राइट, +1 एंड +2 के लिए। तो अभी जो ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसे अभी चेंज कर दिया गया है, क्योंकि पहले क्या था इन 10+2 में, तो 10+2 में अगर आप देखोगे फॉर्मल जो एजुकेशन है ना, ये क्लास 1 से स्टार्ट होता है, दैट इज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द एज ऑफ 6 से स्टार्ट होता है। लेकिन अभी जो 10+2 है ना, इसे
चेंज करके क्या कर दिया गया है, एज यू कैन सी इट हैज बीन मेड टू 5+3+3+4 कर दिया गया है, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया है, ये जो 5+3+3+4 है ना, तो इसमें आप देखोगे कि जो एजुकेशन है ना, ये क्लास 1 से नहीं, एजुकेशन जो है वो इट स्टार्ट्स एट द प्राइमरी लेवल ओनली। तो जो फॉर्मल एजुकेशन है, फॉर्मल एजुकेशन में ही प्राइमरी एजुकेशन को इंक्लूड कर दिया गया है। तो यहाँ पे एज 3 में ही अभी स्टार्ट हो जाएगा फॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ये माना जाता है कि द मोस्ट सिग्निफिकेंट एज फॉर शेपिंग द चाइल्ड्स फ्यूचर, ठीक है, जो एक चाइल्ड है, आप चाइल्ड कैसे किस तरीके से आप उनको एनरिच करोगे, किस तरीके से आप उनका जो माइंड है आप शेप करोगे। सो द बेस्ट एज टू शेप द चाइल्ड्स फ्यूचर इज 3 to 8। तो दिस इज द रीजन वाई जो एज 3 है ना, इसे 3 में ही आप कह सकते हो कि फॉर्मल एजुकेशन को स्टार्ट कर दिया गया। सो 10+2 हैज बीन चेंज टू 5+3+3+4। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट दिस एनईपी। उसके बाद आप देखोगे कि व्हेनेवर अ स्टूडेंट पासेस द क्लास 10 एग्जामिनेशन, आपको चूज करना पड़ता है आइडर मान लीजिए कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स, है कि नहीं। अब यहाँ पे एनईपी ने बात किया गया है टू डू अवे, मतलब यहाँ पे जो स्ट्रिक्ट जो डिवीजन है ना, जो स्ट्रिक्ट जो बाउंड्री जो है आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में, उसे हटाने के लिए यहाँ पे प्रोविजन रखा गया है। मतलब अगर मान लीजिए कि अगर कोई साइंस का, अब करेंटली क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई साइंस का है, देन ऑब्वियसली उनको हिस्ट्री या कोई भी आर्ट्स का, कॉमर्स का सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ने का मौका नहीं मिलता है, ठीक है। तो अगर ये जो बाउंड्री अगर वो हट जाता है, देन अ स्टूडेंट कैन परस्यू एनी सब्जेक्ट, आप कह सकते हो कि एनी स्ट्रीम, एंड ही कैन टेक अ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच यहाँ पे ले सकता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे चॉइस रहेगा कि आप कुछ भी सब्जेक्ट आप ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है एनईपी में ना, अब जो नीति आयोग है, आपको शायद सुना होगा नीति आयोग के बारे में, विच इज द प्रीमियर थिंक टैंक पॉलिसी, जो प्लानिंग करता है गवर्नमेंट के लिए। अब ये नीति आयोग में क्या किया गया है, इस नीति आयोग में आप देखोगे, अब नीति आयोग ने ना एक रिपोर्ट पब्लिश किया था, ठीक है, एनईपी से पहले एक रिपोर्ट पब्लिश किया था, जहां पे उन्होंने बताया था कि इंडिया में यू शुड नो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक मेजर इशू क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, ठीक है, बेरोजगारी का एक बहुत ज़्यादा यहाँ पे इशू है। तो ये जो बेरोजगारी का जो इशू है, नीति आयोग ने ये बताया था, इट इज़ मोस्टली बिकॉज ऑफ द अनस्किल्ड पीपल। मतलब यहाँ पे लोग तो मतलब जो मास्टर्स है या जो डिग्री है वो तो कर लेते हैं, मतलब अ पर्सन, आप कह सकते हो अ जॉब एस्पायरेंट इज ऑफन सीन एज अ ग्रेजुएट, उनके पास स्किल नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्कूल लेवल से यहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में कहा गया है। यहाँ पे एनईपी स्पीक्स अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द वोकेशनल कोर्सेज विद एन इंटर्नशिप, ठीक है, ताकि जो स्किल है ना वो स्किल इनहेंस कर पाए, ताकि बाद में जाके व्हेन ही और शी कंप्लीट्स द डिग्री और कुछ भी एग्जाम जब वो कंप्लीट कर लेते हैं, उस टाइम तक उनके पास एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ स्किल रहता है, ठीक है। अब वापस से अब नेक्स्ट बात यहाँ पे ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अब देखिए यू शुड नो कि द राइट टू एजुकेशन जो है ना, इट इज़ अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। राइट टू एजुकेशन जो है इट इज़ अ फंडामेंटल राइट। अब ये जो फंडामेंटल राइट जो दैट इज राइट टू एजुकेशन जो है, इट इज़ एप्लीकेबल, इट प्रोवाइड्स फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14। मतलब 6 से लेके 14 तक, 6 से लेके 14 तक जो ये एज है ना, इस टाइम में चाइल्ड इज, आप कह सकते हो चाइल्ड can be a child is eligible, every child you can say, every Indian child is eligible for the free and compulsory education, ठीक है। अब यहाँ पे जो एज है ना 14 एज, इस 14 एज को बढ़ा के एनईपी सजेस्ट करता है कि इसे 18 कर देना चाहिए। मतलब the students below the age of 18 should also be allowed to have the right, the fundamental right to pursue free and compulsory education, ताकि यहाँ पे जो enrollment ratio है ताकि वो बढ़ जाए, so that more and more students you can say like pass their, at least their you can say their जो एग्जाम जो है ना प्लस जो 11-12 जो है कम से कम वो पास कर जाए, इसीलिए ये स्टेप लिया गया है, तो इंक्रीज द एज टिल 18, ठीक है। अब यहाँ पे और भी बात हुआ है जैसे कि लैंग्वेज के बारे में। अब आपको पता होगा कि हम जब भी हम स्कूल में जाते हैं 1 से लेके जब भी हम लोग का जब क्लासेस स्टार्ट होता है ना, तो उसमें क्या हो जाता है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ओनली हमें ना एक भाषा यहाँ पे सौंप दिया जाता है। मतलब वी स्लैप द लैंग्वेज। फॉर एग्जाम्पल यूजुअली क्या होता है, इंग्लिश हमें दे दिया जाता है कि आपको अभी इंग्लिश में ही बात करना है, आपको अभी इंग्लिश में ही सीखना है जो भी सीखना है। लेकिन इसमें क्या किया है, यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी का जो डिबेट है ना, आप देखोगे कि कभी कभी हिंदी आपको सौंप दिया जाता है, नहीं तो इंग्लिश आपको दे दिया जाता है कि आपको इसी भाषा में आपको सीखना है। लेकिन एनईपी क्या किया है, एनईपी ये जो हिंदी इंग्लिश का डिबेट है ना, इसे खत्म करने का यहाँ पे ट्राई किया है। बिकॉज क्लास 5 तक एनईपी हैज गिवन द लिबर्टी टू अ स्टूडेंट, ठीक है। क्लास 5 तक यहाँ पे स्टूडेंट जो है ना अपना जो मातृभाषा है, अपना जो मदर टंग है, उसमें भी वो लैंग्वेज वो सीख सकता है।
ठीक है। सो यहाँ पे मान लीजिए जो लोकल लैंग्वेज है या जो रीजनल लैंग्वेज है, जो मदर टंग है, अ चाइल्ड वुड ऑल्सो हैव द राइट टू लर्न इन हिज ओन चॉइस, इन हिज और हर ओन चॉइस ऑफ लैंग्वेज टिल ही और शी अटेन्स द क्लास, या आप कह सकते हो कि क्लास 5 जब तक वो पहुंच जाता है तब तक वो अपने भाषा में सीख सकता है। उसके बाद like he can choose whatever language is comfortable in, for example हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ना स्टूडेंट जो है उनको प्रोवाइड किया जाएगा विद अ 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड। क्या दिया जाएगा उनको? एक 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट कार्ड। पहले क्या था, अभी जो स्कूल में जो रिपोर्ट कार्ड आता है या अपने टाइम में जो रिपोर्ट कार्ड आया था उसमें क्या, रिपोर्ट कार्ड में नॉर्मली जो सब्जेक्ट का नाम है वो रहता है और यहाँ पे जो मार्क्स है वो रहता है, ठीक है। जो मार्क्स हो या ग्रेड हो तो वही सब रहता है ना। इस बार क्या किया गया, एनईपी हैज ट्राइड टू चेंज द मार्कशीट। जो रिपोर्ट कार्ड आता है ना, इट हैज ट्राइड टू मेड टू इनिशिएट विथ अ 360 डिग्री, मतलब इट वुड बी इंक्लूडिंग नॉट जस्ट द स्टडीज या नॉट जस्ट द एजुकेशनल करिकुलम बट ऑल्सो ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टूडेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर वो मान लीजिए कोई क्विज खेला है, इफ इज गुड इन क्विज, और मान लीजिए स्पोर्ट्स, सो एवरी एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट वुड बी इंक्लूडेड इन दैट पर्टिकुलर रिपोर्ट कार्ड। 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में स्ट्रेंथ हो गया, वीकनेस हो गया, सब कुछ वहां पे मेंशन रहेगा, ठीक है। एंड ऑल्सो एट द हायर लेवल में भी यहाँ पे बहुत सारा कुछ चेंजेस लाया गया है। फॉर एग्जाम्पल जो यूनिवर्सिटी जो है ना, मतलब अक्रॉस द वर्ल्ड यहाँ पे जो टॉप 100 यूनिवर्सिटीज है, नाउ दे विल ऑल्सो बी वेलकम टू इंडिया टू सेट अप देयर ब्रांचेस, ठीक है। दे विल ऑल्सो बी रिक्वेस्टेड, और यू कैन से दे विल ऑल्सो बी इन्वाइटेड टू इंडिया टू हैव देयर ब्रांचेस, सो दैट इंडिया का जो यहाँ पे स्टूडेंट्स है, इंडिया का जो यहाँ पे यूथ है, उन लोगों को और भी एक एडवांस, एक इनोवेटिव तरीके का एक एजुकेशन प्राप्त हो, ठीक है। इसी टॉपिक के बेसिस पर आई हैव गिवन यू प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। काइंडली आंसर दिस क्वेश्चन देन रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन। सो नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट असम, या असम के बारे में है। एंड यहाँ पे ये कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस एनसीआरबी का एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है, तो इसमें इन द लास्ट 8 ईयर्स में क्या हुआ है, सबसे ज़्यादा जो सेडिशन केसेस हैं ना, सेडिशन केसेस सबसे ज़्यादा असम से यहाँ पे आए हैं, ठीक है। असम हैज रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ सेडिशन केसेस सिंस द ईयर 2014। सो व्हाट इज सेडिशन केस, इसके बारे में हम बात करेंगे। नाउ व्हाट इज एनसीआरबी देखिए, इट स्टैंड्स फॉर द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। अब ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एजेंसी है। इसका काम क्या है, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द क्राइम डेटा। जितना भी इंडिया में क्राइम होता है ना, मतलब अंदर आईपीसी हो गया, या मान लीजिए अंदर स्पेशल एक्ट लाइक द पॉक्सो एक्ट, मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, तो ये सारा जो एक्ट के अंदर में जो भी सारा क्राइम्स होता है ना, इस क्राइम को वो क्या करते हैं, वो कलेक्ट करते हैं डेटा एंड ऑल्सो एनालाइज करते हैं। दिस इज द जॉब ऑफ द एनसीआरबी। तो ये एनसीआरबी इज हेडक्वार्टर्ड एट दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है एंड इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम, तो होम मिनिस्ट्री के अंदर ये काम करता है। अब सेडिशन लॉ क्या होता है, आई जस्ट क्विकली टेल यू व्हाट इज सेडिशन लॉ। सेडिशन लॉ इज बेसिकली डिफाइंड, मतलब जो सेडिशन है ना, पहले सेडिशन जान लीजिए। तो सेडिशन लॉ इट डिफाइंस सेडिशन एज एनी एक्शन व्हिच इज टारगेटेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। देखिए इंडिया में क्या है, जो इंडियन गवर्नमेंट है ना, जो इंडियन गवर्नमेंट, मतलब मान लीजिए जो रूलिंग पार्टी है या जो पार्टी यहाँ पे रूल करता है, जो गवर्नमेंट यहाँ पे चलाता है, नाउ दिस गवर्नमेंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। इसे क्या कहता है, इट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो गवर्नमेंट का जो प्रोविजंस है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो बेसिकली आवर गवर्नमेंट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। सो एनी एक्ट या एनी, मतलब मान लीजिए एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी विच मे ब्रिंग हेट्रेड, ठीक है, जो आप कह सकते हो कि विच ब्रिंग्स अ काइंड ऑफ डिसअफेक्शन टू द गवर्नमेंट मे बी टर्म्ड एज अ एक्ट ऑफ सेडिशन, ठीक है। ऐसे काम को क्या कहा जाता है, सेडिशन कहा जाता है। इसी के बारे में हम बात करेंगे। दिस आर्टिकल इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर the mains examination GS paper 2. Now let's see कि what does the recent findings say. अब जो ये एनसीआरबी का जो डेटा है, ये डेटा कहता है कि इन द लास्ट 8 years, दैट इज फ्रॉम 2014 to 2021, 475 केसेस हैव बीन रजिस्टर्ड, ठीक है। अब इस केसेस में से ना 69 केसेस बस असम में रजिस्टर हुए हैं, दैट इज 15%, ऑलमोस्ट 15% केसेस यहाँ पे इन द लास्ट 8 years में असम में रजिस्टर हुए हैं, ठीक है। सो आफ्टर असम द मोस्ट नंबर ऑफ केसेस वर रिपोर्टेड फ्रॉम हरियाणा, जहाँ पे 42, देन झारखंड, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर। So this is the list of the states which recorded the highest number of sedition cases since 2014, ठीक है। अब 17 केसेस यहाँ पे देखिए लास्ट साल में क्या हुआ था, दिस रिसेंट डेटा जो है यहाँ पे कहा जाता है कि 76 केसेस जो है ना, सेडिशन केसेस, वो यहाँ पे रिकॉर्ड हुए हैं, रजिस्टर हुए हैं इन द ईयर 2021, ठीक है। और ये 76 केसेस में से ना
29 केसेस जो है आंध्र प्रदेश का है। मतलब 8 साल का जो हाईएस्ट है इट इज असम, और लास्ट साल का जो हाईएस्ट इट इज हु, आंध्र प्रदेश। एंड वेरी पिकुलियर थिंग अबाउट आंध्र प्रदेश इज दैट 2020 में ना आंध्र प्रदेश में जो सेडिशियस केसेस था वो 0 था, ठीक है, लेकिन 2021 में जो लेटेस्ट डेटा है उसमें 29 केसेस रिकॉर्ड हुआ है, ठीक है। सो नाउ लेट्स लुक कि ये व्हाट इज द सेडिशन लॉ ऑल अबाउट। So see the origin of the sedition law जो है ना, the origin of the sedition law it dates back to the colonial past of the British era। तो ये ब्रिटिश एरा के टाइम से ही है। सो अगर आप देखो कि ये origin कहाँ पे हुआ है, it is origin in 17th century इंग्लैंड में हुआ है, जहाँ पे ये इसीलिए लाया गया था बिकॉज यहाँ पे ना ब्रिटिशर्स का जो पॉलिसीज है उसे क्रिटिसिज्म जो है ये क्रिटिसिज्म अलाउड नहीं था। मतलब यहाँ पे ये कहा गया था कि अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट का ओनली गुड ओपिनियन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो पीपल जो है पीपल शुड ओनली होल्ड गुड ओपिनियंस अबाउट द गवर्नमेंट, क्योंकि अगर किसी का बैड ओपिनियन है देन दैट वुड बी डेट्रीमेंटल टू द गवर्नमेंट एंड द मोनार्की, ठीक है। तो ये मोनार्की के लिए ये डेट्रीमेंटल हो जाएगा, तो इसीलिए इन ऑर्डर टू हैव ओनली गुड ओपिनियंस ये एक्ट लाया गया था। ये जो एक्ट है इसे ओरिजिनली ड्राफ्ट किया गया था 1837 में इंडिया के केस में, ये थॉमस मैकॉले ने इसे ड्राफ्ट किया था, ये जो एक्ट है 1837 में। लेकिन अब देखोगे ये 1860 में जब ये आईपीसी जब आया था, ठीक है, व्हेन द आईपीसी वाज इनेक्टेड द इंडियन पिनल कोड, तब ये क्या हुआ था, दिस एक्ट वाज ओमिटेड, ठीक है, ये जो सेडिशन लॉ था ये ओमिट किया गया था। लेकिन वापस से आफ्टर डिकेड इट वाज री-एडेड बाय एन अमेंडमेंट, ठीक है, एक अमेंडमेंट किया गया था ये आईपीसी में और इसे ऐड किया गया था बाय जेम्स स्टीफन, ठीक है। आज अगर आप देखोगे जो सेडिशन है इट इज अ क्राइम अंडर सेक्शन 124A ऑफ द इंडियन पिनल कोड, ठीक है। करेंटली इट इज अ, ये सेक्शन के बारे में कभी आपको पुलिस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेक्शन 124A स्पीक्स अबाउट द सेडिशन लॉ। आज के दिन में देखिए सेडिशन लॉ कैसा है। सो ये जो एक्ट है ये डिफाइन सेडिशन को कैसे डिफाइन करता है, इट मतलब ये डिफाइन करता है कि ऐसा कोई भी एक्ट हो गया या वर्ड्स हो गया, या मान लीजिए कि एनी वर्ड्स व्हिच आर आइदर स्पोकन और रिटन और साइंस और विजिबल रिप्रेजेंटेशन और एनीथिंग व्हिच ब्रिंग्स और अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग इनटू हेट्रेड और कंटेम्प्ट एंड डिसअफेक्शन टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट व्हिच हैज बीन एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इफ इट इज इफ द एक्ट ऑफ अ पर्सन या द राइटिंग्स ऑफ अ पर्सन इज ब्रिंगिंग अबाउट एनी सच काइंड ऑफ हेट्रेड और डिसअफेक्शन, देन इट कैन बी टर्न्ड एज अ सेडिशन, ठीक है। अब ये जो डिसअफेक्शन है it includes disloyalty and all feelings of enmity, ऑलराइट। अब यहाँ पे जो है ना, अगर मान लीजिए कि कोई भी पर्सन अगर यहाँ पे गवर्नमेंट को इफ इट इज क्रिटिसाइजिंग इट इन अ कंस्ट्रक्टिव मैनर देन इट वुड बी नॉट कॉल्ड एज सेडिशन। जैसे कि यहाँ पे कमेंट्स विदाउट एक्साइटिंग, मतलब मान लीजिए कि अगर कोई भी ऐसा एक्ट है या राइटिंग है विच इज नॉट टारगेटेड एट ब्रिंगिंग अबाउट वायलेंस, देन इट इज नॉट अ सेडिशन अंडर द सेक्शन 124A, ठीक है। सो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट मे बी अलाउड, और ये क्यों अलाउ होता है, सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द डेमोक्रेटिक इथोस ऑफ द नेशन, ठीक है। सो द डेमोक्रेसी है इंडियन डेमोक्रेटिक नेशन, तो इसीलिए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज अलाउड बट नॉट टू ब्रिंग अबाउट हेट्रेड और डिसअफेक्शन। So now let's look at the punishment. So if any person is convicted under this sedition, then it is a non-bailable offense. ठीक है, यहाँ पे 3 साल से लेके लाइफ टर्म तक का भी यहाँ पे सजा हो सकता है। और अगर कोई if a person is charged under this law, then it is also barred from the government job. तो उनको गवर्नमेंट जॉब भी नहीं मिलेगा। एंड देन यहाँ पे देखिए लॉ क्यों इंपॉर्टेंट है, we'll look at the pros and the cons of the law. अब ये जो लॉ है ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस कैन कीप अ चेक ऑन द एंटी नेशनल secessionists and the terrorist elements. अब देखिए यू विल फाइंड द नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस मे हैव सम काइंड ऑफ सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज, ठीक है। तो अगर ऐसा टेंडेंसीज रहता है देन डेफिनेटली इट मे प्रूव टू बी डेट्रीमेंटल फॉर द नेशन, तो इसे चेक करता है, ठीक है। और उसके बाद इट ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट, बिकॉज अगर मान लीजिए कोई अगर ऐसा एक्ट कर रहा है, समवन इज राइटिंग कंटिन्यूअसली अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसीज, देन दे कैन ऑल्सो बी एम्पावर्ड टू थ्रो आउट द रूलिंग पार्टी, ठीक है। तो ये जो सो दैट ऐसे रूलिंग पार्टी जो पॉपुलरली इलेक्टेड लीडर्स है, सो दैट दे कैन नॉट बी थ्रोन आउट, सो इट इज इंपॉर्टेंट, ऑलराइट। एंड उसके बाद इलेक्टेड, अब देखोगे ये जो एक्ट है ना, ये जो एक्ट है इट कैन ऑल्सो बी सीन एज एन इक्विवेलेंट टू द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या करता है, इट हेल्प्स इन स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ जुडिशियरी, है कि नहीं। जुडिशियरी का जो स्मूथ फंक्शनिंग है उसमें आप कोर्ट के अगेंस्ट आप यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हो, तो ये जुडिशियरी को हेल्प करता है। तो इसी तरीके से इफ यूज इफेक्टिवली ये जो सेडिशन एक्ट है इट में ऑल्सो हेल्प इन द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द एक्सिक्यूटिव, ठीक है। सो द इलेक्टिव गवर्नमेंट जो है उनको स्मूथली परफॉर्म करने में हेल्प हो सकता है इफ इट इज यूज्ड इफेक्टिवली। नाउ विल लुक एट द कॉन्स।
So the most important criticism about this sedition law is that it is a clear indication of the colonial hangover. Now you know what is hangover? Hangover होता है जो नशा खत्म हो जाता है लेकिन हैंगओवर रह जाता है कि नहीं? अब ऐसा माना जाता है कि ब्रिटिशर्स का रूल खत्म हो गया है, लेकिन उन लोग का जो यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट था ना, जो इल इफेक्ट है वो अभी भी चल रहा है. कैसे? देखिए, ये जो एक्ट है वो ब्रिटिशर्स ने लाया था, आपको मैंने बोला है, और ब्रिटिशर्स ने इसको यूज किया था अगेंस्ट लीडर्स लाइक भगत सिंह, अगेंस्ट लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू को ट्राई करने के लिए. अभी भी अगर आप देखोगे इस एक्ट अगर ये कंटिन्यूएंस है तो ये माना जाता है कि इट इज नथिंग बट एंड वर बट अ कंटिन्यूएंस ऑफ द colonial effect only. ठीक है, where the authorities are still not able to recover from the colonial mindset of suppression. ठीक है, अभी भी ये लॉ यूज किया जाता है to suppress such dissent, you can say. ठीक है, सो इट इज अ काइंड ऑफ इल इफेक्ट ऑन ए कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, बिकॉज ऐसा है कि अगर ये अलाउ करता भी है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, बट स्टिल अ पर्सन, अगर मान लीजिए कि इफ ही और शी बिलोंग्स टू द ऑपोजिशन, तो उनका वॉइस जो है वो सप्रेस करने के लिए इट कैन दिस लॉ, वो जो पर्सन है उनको ट्राई किया जा सकता है, उनको चार्ज किया जा सकता है अंडर दिस सेडिशन लॉ. ठीक है, तो यहाँ पे जो अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ऐसा है कि ब्रिटेन जो है जहाँ पे ये ऑरिजिन हुआ था, तो द कंट्री ऑफ ऑरिजिन हैज इटसेल्फ रिपील्ड दिस एक्ट. तो 2009 में इसे रिपील कर दिया गया है. सो ऑब्वियस सा बात है, इट इज हाई टाइम दैट इंडिया शुड आल्सो थिंक अबाउट इट, लाइक रिकंसिडर द प्रोविजंस रिगार्डिंग दिस सेडिशन लॉ. ठीक है, अब जो सेडिशन लॉ है, अब देखिए इट कुड लीड टू द रॉन्ग यूज, एज आई टोल्ड यू कि कैन ऑब्वियसली बी मिसयूज्ड बाय द ऑथोरिटीज हु आर इन पावर. सो ऑथोरिटीज इन द पावर मे मिसयूज इट टू सप्रेस द वॉइस ऑफ द मास, वॉइस ऑफ द पब्लिक. ठीक है, so now this previous practice question is not directly related to the article that we have discussed, but a little bit यहाँ पे relation है, तो it is mostly based on the history. तो यहाँ पे just try to answer this question. I'll discuss this question in the next class. मैं आपको इसका आंसर भी बताऊंगा and some details about it as well. Now this were the list of the question that I had shared in the last video. So let's now look at the answers. So the answers are all right. तो द फर्स्ट वन एज यू कैन सी, तो ये हमने डिस्कस किया था अबाउट दी एनपीटी के बारे में. सो अकॉर्डिंग टू दी एनपीटी, आई टोल्ड यू कि 1967 से पहले जो कंट्रीज ने यहाँ पे टेस्ट किया था, ओनली दोज विल बी एलिजिबल टू कॉल एज दी न्यूक्लियर वेपन स्टेट. सो अकॉर्डिंग टू इट, ओनली चाइना एंड फ्रांस आर न्यूक्लियर वेपन स्टेट. इवन दो इंडिया, इजराइल एंड पाकिस्तान possess nuclear weapons, but they are not eligible of being called a nuclear weapon state under the NPT. तो हेमिस नेशनल पार्क इज द लार्जेस्ट पार्क ऑफ इंडिया. ठीक है, यू शुड नो इट इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, और यहाँ पर इट इज क्वाइट फेमस फॉर द स्नो लेपर्ड. ठीक है, एंड इट इज आप कह सकते हो, इट इज ऑल्सो टोल्ड कि इट प्रोबेबली हैज द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ द स्नो लेपर्ड. ठीक है, और जीरो का जो म्यूजिक फेस्टिवल है, इट विल बी टेकिंग प्लेस इन द विलेज बिडी. आई एम नॉट श्योर अबाउट माई प्रोनाउंसिएशन. इफ इट इज रॉन्ग, प्लीज forgive me. So this was all from my side for today. Thank you so much for joining in, guys. Bye bye. Have a great day. Thank you.